आपका आज की वीडियो में। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडियन डॉक्टर सेव्ड 3-year-old पाकिस्तानी किड। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद अनीक अंजम एंड लिटिल वन मोहम्मद अयान अंजम। अयान 3 to 4 months का जब वो हुआ तो मैंने अपनी जगह पे ये ऑब्जर्व किया कि इसको इसका नाम पहचानने के लिए इसको आवाज़ देते थे। इसको अयान अयान ऐसे कह रहे थे कि अपना नाम पहचाने, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता था। और मेरी वालदा ने भी कहा कि मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देन वी गॉट वरीड और हमने वहाँ पर ही एक ऑडियोलॉजिस्ट है वहाँ पे इसको दिखाया, जिसमें हमें पता चला कि इसका हेयरिंग लॉस अबव 90% निकल गया और इसका इलाज सिर्फ कॉक्लियर इम्प्लांट है। They visited us, they contacted me through my website, internet. I have operated many patients in Pakistan, and because of better facilities available in this part of the world, they decided to come to me. We organized the hospital, Max Hospital organized all the visa facilities, and they reached us here about 3 days back. पाकिस्तान छोड़ने से पहले जब इसका सारा प्रोसीजर चल रहा था यहाँ इंडिया आने के लिए, तो ये इशारों की ज़ुबान पे आ गया था। ये समझाता था किस तरह से कि अगर इसने मुझे कॉल करना है तो ये मुझे ऐसे हाथों से समझाता था कि यहाँ आओ, इधर आओ, ऐसे मुझे समझाता था। इसने अगर कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो ये ऐसे अपने होंठों की तरफ हाथ को लेके जाता था कि आई वांट टू ईट समथिंग। फिर अगर इसको नींद आती थी तो ये अपने आंखों पे ऐसे हाथ रख लेता था कि मुझे नींद आई है। और अगर कुछ खा रहा है तो नहीं दिल कर रहा और तो ऐसे कर लेता था कि बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो चीज़ अंदर से हमें काटती थी कि बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ये कब होगा। Since it's a very very small child, 1 year of age, so you can imagine that the child is itself very small, the ear is very small, the brain is bare. Although cochlear implant surgery is a ear surgery, it has got nothing to do with the brain, but then everything was so small that creating a space from the outer ear, now this is our pinna, we create an incision behind, we open into the mastoid cavity and we reach the inner part of the ear. So the space is very limited, the vital structures are there, so we need a state-of-art equipment, operation theatre, there shouldn't be any infection, bleeding, so all these facilities are available here. इससे अच्छी फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी हमारे देश में नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जो है उसका रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ, वो भी छोटा बच्चा, उसको किस तरह से केयर करना है, कहीं सर ना लग जाए, ये बहुत ज़्यादा टास्क लगा। It took about 2 to 2.5 hours, and intraoperatively we could test that the implant was functioning normally. All the intraoperative recordings were done. X-ray was taken intraop, which confirmed the position of the electrode in the cochlea. It's been 2 days now. The child is doing very well, and the child is being discharged today. The healing process will take about 7 to 10 days, and after about 10 days, we will switch on. And we did this implantation, advanced bionics implant, and this is the first newly inaugurated, Q90 processor, which was just introduced about last week in India, and this is the first surgery which is being done with this Q90 processor at Max Smart Surgery Hospital, Saket. एक होता ना कि मेरे कान तरस जाते थे कि ये कब अपनी ज़ुबान से मामा बोलेगा, पापा बोलेगा। तो वो चीज़ बहुत मिस की है मैंने। 6-7 months मैंने बहुत मिस किया और मैं बहुत इम्पेशेंटली उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। The most important part of the cochlear implant program is the speech therapy, the rehabilitation, which the child is going to pursue for the next 6 months to 1 year. Without this therapy and rehabilitation, this program will fail. It is important that the earlier we do, the better it is. It is seen that if we operate such children at such an early age, they will grow normally like any other children. Like you know that the child starts to speak words at about 1.5 to 2 years of age. So it
now the sound signals is going to go in, and because the sounds will go in, you will automatically start speaking out. Speech therapy is going to hasten the process. The most important role is those of the parents and the auditory verbal therapist. My only submission in such cases is early identification. In this, I would really like to appreciate the parents, especially the mother, who could make out at such an early age, 3 months, that her child who was responding earlier to sound stimulus had stopped responding, and that is what actually gave her a suspicion that he might be suffering from hearing loss. इतना क्यूट बच्चा है ना, देख के ही नो डाउट इंडिया जो है मेडिकल फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे निकल चुका है। दुनिया भर से लोग जो है वो सर्जरी करवाने जो है वो इंडिया आते हैं। लेकिन अगर आज की सर्जरी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से जो बच्चा वहाँ पर गया है जिसके जो है हेयरिंग इशू था, उसकी जो है वो सर्जरी की गई है। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जो है ना इन पे जितना मर्जी चर्चा कर ले, जितनी मर्जी बात कर लें यार, उतनी कम है। बट मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हमेशा से बोलती हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी मेडिकल वीज़ा की ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया की तरफ से मतलब हमेशा रिस्पॉन्स आया। और इनफैक्ट जैसे वीडियो में बताया भी गया कि जो हॉस्पिटल की तरफ से प्रॉपर वीज़ा और हर चीज़ का जो है अरेंज किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया कभी भी उससे पीछे नहीं होता। और अगर हम लोग मेडिकल की स्पेशली बात करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग जो हैं वो इंडिया ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि एक तो एडवांस ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है, उसके साथ साथ वो इतना कॉस्टली भी आपको नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ जो है डेफिनेटली जो पेशेंट हैं या उनके घर वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई मतलब किसी भी इंसान को प्रॉब्लम होती है तो घर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ एक टेंशन क्रिएट करती है कि भाई अब इसका कितना ख़र्चा आएगा। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इंडिया में काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको ये सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें मतलब जो बच्चा और जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की और टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट करवाया, तो मुझे लगता है कि ये उनकी खुशकिस्मती और बच्चे की भी खुशकिस्मती है, क्योंकि जैसे डॉक्टर सुमित ने भी बोला कि मतलब जैसे जैसे आप आगे जाते हो एज में तो वो उस तरह से मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा, शायद कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, आप जो चीज़ होती है वो फिर उस तरह नहीं वो जो है वो रहती, क्योंकि टाइम के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका मसल जो है वो मैच्योर जो है वो होता जाता है, तो उसमें फिर एक वो चीज़ आप उस तरह नहीं इम्प्लांट कर पाते होंगे जो आप जो अर्ली स्टेजेस में जो एक चीज़ पकड़ ली जाती है। अब इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेडिकल फील्ड के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो बच्चा बहुत खूबसूरत भी था, और बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते। लाइक मैं अभी कल ही बात कर रही थी, घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए जो मतलब आप उसके साथ खेलो और बहुत आप इंजॉय करते हो छोटे बच्चों की कंपनी को। यानी कि इस एज के बच्चे भी आपको ना आपका दिल बहुत ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन ये है कि अच्छी बात यह है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है और टाइमली उन लोगों ने उसका ट्रीटमेंट करवाया। और जिस तरीके से मतलब जो स्टाफ है और जो हॉस्पिटल है उन्होंने अपनी एफर्ट दिखाई, जो डॉक्टर हैं उन्होंने इनफैक्ट जो एक लाइक क्या बोलेंगे उसको डिवाइस, हाँ जो डिवाइस कान में लगाने के लिए उन्होंने बोला भी कि अभी 3 दिन पहले ही ये इंट्रोड्यूस हुई है। तो मैं कहूँगी ये भी खुशकिस्मती है उनकी कि मतलब उनके आने से 3 दिन पहले कोई ऐसी डिवाइस आई और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। भाई देखें हर चीज़ में कोई ना कोई जो है ना वो बेहतरी जो है आपको नज़र आती है। भाई बच्चे की अगर बात की तो वाकई बहुत ज़्यादा क्यूट था, और जो है ना भाई टाइम रहते जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि भाई अगर छोटी एज की बात करें तो लगभग बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, तो वो माँ बाप को खुद चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं कि बच्चे में क्या चेंजिंग्स जो हैं वो आ रही हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि भाई वो जो है ना उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा जो है वो करता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई
किया और टाइमली जो है वो बच्चे को लेकर आए, ऑपरेट करवाया, तो नो डाउट भाई एज के साथ साथ उसकी वो चीज़ जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो आती जाएगी। और फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बीच में कहा कि भाई जो थेरेपीज जो हैं, स्पीच थेरेपीज जो है वो बच्चे को करानी पड़ेंगी और सारा कुछ होना पड़ेगा, तो नो डाउट ये चीज़ें टाइमली जो है वो चलती हैं और मेरा ख्याल वक्त के साथ सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन ये कि आजकल के पेरेंट्स को मैं एक सीरियसली जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि बच्चों को सीरियसली मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब मैं हेयरिंग की बात नहीं कर रही, लेकिन ये कि स्पोकन की बात कर रही हूँ, बोलना जो उनका सही नहीं आता। बोलना सही नहीं आता, सो उसके लिए स्पीच थेरेपीज करवानी पड़ती हैं, या फिर विद टाइम बच्चे जो हैं वो सही हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक ये इश्यूज जो हैं वो हम लोगों को, मतलब जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मुझे लगता है कि इसकी तरफ खास तौर पे तवज्जो देनी असल में चाहिए। आजकल एक चीज़ है ना, माँ बाप जो है वो बच्चों से टाइम जान नहीं छुड़ाने देते, के लिए जो है ना हाँ। कहते हैं लो पकड़ो मोबाइल, लगे रहो, हमें सुकून से लेटे रहने दो। लेकिन ये बहुत गलत मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है। पहले जब सारे घर में एक जॉइंट फैमिली में दादा दादी या फिर अगर आप अपनी नाना नानी से मिलने जाते थे तो बहुत ज़्यादा ना एक आप कह लो कि वो बड़े बातें बहुत ज़्यादा करते थे। माँ बाप के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होता था क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे, टीवी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था। आजकल के टाइम में तो बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है किसी के पास। कहने का मतलब ये है कि ना ऑब्जर्वेशन, बट माँ बाप फिर भी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो है, स्पेशली माएँ जो है, सबसे पहले वही आइडेंटिफाई करती हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। हम लोगों ने जितनी भी आज तक वीडियोस देखी हैं मेडिकल से रिलेटेड, जहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स ने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने हमेशा पेशेंट की इतनी ज़्यादा केयर की है और उनको बिल्कुल ठीक कर कर भेजा है। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब ये कोई बंदा जाता है ना, तो वो जब एक वहाँ पर देखता है, हॉस्पिटल्स देखता है, और दूसरा जो है डॉक्टर्स के वो ट्रीट करने के तरीके देखता है, तो लिटरली वो हैरान होते हैं। क्योंकि जैसे बीच में उन्होंने कहा डॉक्टर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने रही है। फिर उसके बाद और भी जितनी हमने जो है वीडियोस देखी हैं जिसमें कहा गया कि भाई आप एनी टाइम जो है वो इन टच जो है वो हो सकते हैं डॉक्टर से। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको हौसला भी देती है, और आप जो है ना लिटरली उस चीज़ से होता भी कि भाई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी बात बोलूँगी कि ये बहुत आपके लिए हौसले की बात होती है। एनीवे गाइस, ओवरऑल वंस अगेन मैं बोलूँगी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ ही मजा हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।